Good morning, everyone. I am Dibyojit Bagchi, and I am a third year undergraduate student from IIT Bombay. And technically, I have completed my third year. Just a few weeks back, I gave my end semester exam, and I am from chemistry department. And in 2018, I wrote JEE Advanced examination, and I secured an All India rank of 2000, 325. I wrote the exam in 2018, but my All India rank was 325. In that year only, I secured an All India rank of 302 in JEE Main, and my zonal rank in Guwahati zone, as I hail from Patna, it comes under Guwahati zone. So it was 4 in Guwahati zone. And then I joined IIT Bombay in chemistry department. And you might be thinking that why this guy joined chemistry in spite of having a under 500 rank, right? So it was because my interest, my real passion is in chemistry. I know a lot of students nowadays are crazy for computer science. In fact, I am personally have seen a lot of students who will all the time say to me that they want to get CS in any of the top colleges in India, right? So it's your dream. Everyone has different set of goals. So mine was to become a researcher, to pursue higher studies. Okay, and that is why I chose chemistry. And I always get my inspiration from people like APJ Abdul Kalam, innovators like Tesla, scientists like Madame Curie, and all. Since my childhood, I wanted to become a scientist, and that is why I choose basic science for my career. And now, apart from all this, I am also a KVPY fellow. मैंने KVPY का एग्जाम भी क्वालिफाई किया था ऐसे कैटेगरी में, और मैं NTSC स्कॉलर भी हूँ, and I have also qualified RMO, and I have qualified the prestigious exam of INCHO, Indian National Chemistry Olympiad, and I was among the top 30 students from the country who were selected for the third round, which is the orientation cum selection camp, and it really occurs in the TIFR Mumbai. Okay, unfortunately, I couldn't make it into the final, the international round, but I think Chemistry Olympiad was one of the major reason that why I'm pursuing chemistry. Okay, so apart from all this, the biggest question you might be having in your head कि when did I came to know about JEE, right? IIT के बारे में कब पता चला और कब सोचा कि IIT की प्रिपरेशन की जाए, राइट? सो IIT के बारे में मैंने सबसे पहले सुना जब मैं क्लास 6 में था, तो हमारे एक दूर के रिलेटिव का बेटे का IIT में हुआ था, एंड ही वाज सेलेक्टेड फॉर मैकेनिकल इन IIT पटना। तो क्योंकि मैं पटना से हूँ, तो वो हमारे घर पे आए थे, और तब लोकल गार्जियन का कॉन्सेप्ट होता था, तो हमारे फैमिली उनके लोकल गार्जियन बने थे। तो तब पहली बार IIT क्या होता है वो सुनने में आया, पता चला कि IIT होती क्या चीज़ है। बट दैट टाइम आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर कि एग्जाम कैसा होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या करना होता है, बिल्कुल भी नहीं पता था। इट वॉज इन क्लास 9th आई ज्वाइन द कोचिंग basically for IIT JEE preparation only. But there when I joined, I came to know कि तुम्हें अगर IIT करना है तो पहले NTSC एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो मैंने NTSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की, and I was good in my school. I was one of the toppers. But in coaching things were very different. You are good, so managing all these things is very difficult. Coaching में कुछ अलग तरह का पढ़ाई होता है, स्कूल में you have a different set of things, right? And NTSC का प्रिपरेशन अलग है, JEE का प्रिपरेशन अलग है, तो it was very difficult for me to manage. और आप लोग को भी स्टार्टिंग में कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कोप अप करने में। जब आप कोई नया चीज स्टार्ट करते हो तो जनरली बिल्कुल प्रॉब्लम होता है नया कुछ सीखने में। जब हम कोई भी चीज नया ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, और हम उसी मिस्टेक से ही सीखते हैं, राइट? आप बताओ, जब कोई बच्चे साइकिल चलाना सीखता है स्टार्टिंग में, तो कई बार हम गिर जाते हैं, राइट? तो ये तो है, जब आप कोई नया चीज सीखते हो तो मिस्टेक होता है, इनिशियली आपको डिफिकल्टी होती है, बट द थिंग इज यू शुड नेवर गिव अप, दैट मेंटालिटी शुड बी देयर। एंड सेकंड थिंग, यू शुड बी लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग। जब मैं कोचिंग में गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे जो काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। मैं वहाँ के टेस्ट में मीडियोकर था, मतलब 10-15 ऐसा रैंक आता था आउट ऑफ बैच ऑफ 30। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों से देखकर इम्प्रूव हुआ, ठीक है, ग्रेजुअली लोगों से देखकर इम्प्रूव हुआ, ठीक है ना? तो इस तरह से मैं आगे बढ़ा। उसके बाद क्लास 10th में आने के बाद मैंने JEE का सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और NTSC भी मेरा हो गया। वैसे NTSC मैंडेटरी नहीं है,
हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं है। 2 साल का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपने लाइफ में ही बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 11th से जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की और उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऑल यू नीड इज टू बी सीरियस, ओके, नो एनटीएससी इज नॉट कंपल्सरी। So you all you need to be very serious about your goal, and even in 2 years, even in 1 year, I have seen, I had one friend who was a dropper, and he secured an all India rank of 413. He was with me, and सिर्फ उसने 1 साल ही मेहनत की। तो that is something which you need to do. You have to be very focused on your goal, toward your goal. You cannot afford to waste your time to make mistakes like this. And then after 10th, the biggest question which I had in my head कि करना क्या है, मतलब ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है ना सभी स्टूडेंट्स को 10th के बाद कि they want to do coaching in their hometown, or many of the students want to move out to Kota, right? So for me Kota was never an option. मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो मैंने अपने होम टाउन में ही एक कोचिंग स्टार्ट की करना वहाँ पे। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मेरे जितने भी फैकल्टीज थे वहाँ पे वो काफी अच्छे थे, उनका सपोर्ट मुझे मिला। और ये टीचर्स का रोल तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ अपने लाइफ का ही एक इंसिडेंट बताऊंगा, पर उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोग से पूछता हूँ। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है ना जेई के प्रिपरेशन में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, राइट? मतलब ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक से सब लोग हेट करते हैं। कोटा फैक्ट्री जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता ही होगा, पूरा एक एपिसोड डेडिकेटेड था इनऑर्गेनिक के लिए। बट फॉर मी इट वाज नॉट, बिकॉज माय इनऑर्गेनिक टीचर वाज सो फनी कि वो क्लास में इतना कॉमेडी करते थे, इतना कॉमेडी करते थे कि हंसते हंसते ही सब याद हो जाता था। मतलब जैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स है उनके लिए उन्होंने निमोनिक्स बना दिए, गाने बना दिए, और वो गाते रहते थे, हमें भी अच्छा लगता था, हंसते रहते थे, हम भी गाते थे, हमें याद हो जाता था। अब जैसे कोई रिएक्शन है तो वो सिर्फ आके क्लास में 10 रिएक्शन लिख दिया और बोला बच्चे याद कर लो, ऐसा नहीं, उस चीज को थोड़ा फनी वे में करते थे, ठीक है ना? तो इस तरह से वो हमारे साथ इंटरैक्ट करते थे। तो टीचर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। उससे तो मैं स्टार्टिंग में ना मैथ्स में बहुत वीक था। जब आप 11th का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो मैथ्स में कौन कौन सी टॉपिक्स होती है? बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, वो लॉग वगैरह, मॉडुलस वगैरह होता है, ठीक है? तो वहां पर मुझे बहुत ही डिफिकल्टी होती थी। फिर फिजिक्स में भी कैलकुलस आ जाता है। मतलब बच्चा 10th से 11th में जाता नहीं है, उसने कभी कैलकुलस का सी नहीं पता, और आपको फिजिक्स में कैलकुलस आ जाता है और उसका यूज करना था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो मेरे से होता नहीं था वो सब। स्टार्टिंग में मेरे लिए मैथ्स बहुत टफ था, तो मेरे हरीश सर थे मैथ्स के, वो मुझे काफी मोटिवेट करते थे मैथ्स के लिए। और ऐसा ही एक किस्सा है कि आरएमओ होने वाला था, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और तब मेरे बैच के सभी बच्चों ने आरएमओ के लिए अप्लाई किया था। एंड आई वाज वेरी अफ्रेड कि मेरा तो होगा ही नहीं, तो व्हाई गिव अ ट्राई, व्हाई वेस्ट टाइम गिविंग दिस एग्जाम व्हेन होगा ही नहीं। और हमारे टाइम पे आरएमओ वाज डिफरेंट, मींस दिस टाइम यू हैव फर्स्ट पीआरएमओ देन आरएमओ। अपने टाइम पे वो सिर्फ आरएमओ होता था, अराउंड 10 to 15 questions, sorry, 7 to 8 questions of 10 to 15 marks, and subjective, fully subjective. So I was very afraid. And then he actually came to know somehow that I am planning to ditch that exam, I'm not going to give it. So he said कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं दे रहे हो? तो मैंने कहा कि सर नहीं होगा। मैंने तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, फिर तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर फालतू में पैसा वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे पैसों की चिंता है तो मैं भर देता हूँ तुम्हारा फीस, चलो कोई नहीं, भरना तो होगा। देन मैंने ठीक है भर दिया। फिर भी थोड़ा था वो प्रॉब्लम कि होगा नहीं होगा, कभी प्रिपरेशन तो की नहीं है इतना। वो ओलंपियाड लेवल मैथ्स थोड़ा अलग तरह का होता है जेई मैथ्स से। अब जेई मैथ्स ही नहीं हो रहा है तो ओलंपियाड मैथ्स कैसे होगा? तो सर क्या करते थे, सुबह सुबह आ जाते थे और मेरे को बुला लेते थे कि तुम सुबह सुबह आ जाओ मेरे पास, और 1 घंटे आधे घंटे बैठ के प्रीवियस ईयर आरएमओ का क्वेश्चन करते थे। या आईआईटी जेई जब 70 80s 90s में जब जेई सब्जेक्टिव होता था तो वैसे क्वेश्चन बैठा के मुझे कराते थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, ताकि तुम्हें लिखने की आदत होगी, थिंकिंग बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोग को भी दूंगा कि आज के डेट में जेई ऑब्जेक्टिव होता है। सो वी आर ऑल बॉदर्ड अबाउट गेटिंग द फाइनल आंसर, but IIT is not about getting the final answer. Lot of question in JEE Advanced are very twisted. Means you will think the answer should be A, but answer will be B. That is where actually the concept comes in. So you have to have a critical thinking
in order to solve JEE problems. तो तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना होगा कि तुम कैसे एक नए सिचुएशन में, तो आईआईटी जेईई एडवांस में क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, एटलीस्ट सभी नहीं तो फिर भी 70 to 80% क्वेश्चन आपके नए होते हैं, किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। ऐसा मेंस में होता है कि मतलब बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाते हैं, एडवांस में तो नए क्वेश्चन आते हैं ना। तो नए क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करोगे, वो तभी होगा जब तुमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया है, जब तुमने क्रिटिकल एनालिसिस है तुम्हें, तुम क्वेश्चन की एनालिसिस कर पा रहे हो कि नया सिचुएशन आ जाएगा तो कैसे सोच पा रहे हैं। सोचना बहुत जरूरी है, सिर्फ मशीन की तरह क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये मेंस तक ठीक है, जेईई एडवांस के लिए यू हैव टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो फिर उन्होंने इस तरह से मुझे ट्रेनिंग कराया पूरा 2 महीने, और तब जाके मैंने आरएमओ का एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद मुझे लगा मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव होता था, एक क्वेश्चन छूट गया था, बाकी सारे भी 100% हो नहीं पाए थे। देन जब रिजल्ट आया तो आई वाज टोटली शॉक्ड कि पूरे बिहार में आई वाज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर इन आरएमओ। तो ये है, टीचर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टीचर्स को फॉलो करेंगे ना, स्टूडेंट्स का तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो अपने हिसाब से चीजों को करने लगते हैं, एंड दैट इज वेयर इट गोज ऑल रॉन्ग। यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स, मींस दे हैव लाइक 20 years 15 years एक्सपीरियंस ना, तो उन्होंने तुम पहले नहीं हो उनके लिए, उनके पास बेसिकली उन्होंने एक जनरेशन को ट्रेन किया है, तो दे नो, समझ रहे हो। तो उनकी बात को फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ, और डरना नहीं है, चीजों से लड़ना है। मतलब मैं मैथ्स में कमजोर था, ऐसा मुझे लगता था, अगर मैं यही सोच के एग्जाम नहीं देता तो क्या मैं क्वालिफाई भी कर पाता, एग्जाम ही नहीं दिया तो क्वालिफाई तो छोड़ ही दो। तो वो है, अपने में एक कॉन्फिडेंस तो रखना है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि जेईई में उनका क्या होगा, है ना, डर लग रहा होगा कि मेरा एग्जाम खराब चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो दूसरा बच्चा एग्जाम दे रहा है वो भी एक बच्चा ही है, वो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, उसने भी कहीं से कोचिंग की है, जस्ट लाइक यू, ही इज जस्ट लाइक यू, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। सो तुम्हारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए, इस चीज को समझ रहे हो। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ करियर, मतलब 11-12 में मेरा फेज ऐसे स्टार्ट हुआ। वेल टू बी ऑनेस्ट, देखो सभी किसी का भी लाइफ ना, इट्स नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, वी ऑलवेज हैव अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, राइट। So I even had my ups and downs, and the most important thing is कि you have to have a positive mindset. Now if you are happy, if you are very happy, if you are enjoying the success of your life, then you should be optimistic when you have a bad time, when you have a rough patch in your life, ठीक है। तो मैं भी ऐसा था, मतलब स्टार्टिंग में मेरे लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट थी, 10 to 11 का ट्रांजिशन बहुत टफ था, मैथ्स नहीं होता था, फिजिक्स में मतलब जहां क्वेश्चन में कैलकुलस आया दिक्कत होना शुरू हो जाता था, सिर्फ केमिस्ट्री होती थी क्योंकि केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था स्टार्टिंग से ही, तो केमिस्ट्री कर लेता था। तो देन आई रियलाइज कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि हमने एक परसेप्शन बना लिया कि मैथ्स हार्ड है तो मैथ्स नहीं होगा, तो उससे फाइट करना होता है। तो मेरे सर ने यही कहा कि तू रोज 20 सवाल 30 सवाल मैथ्स के बनाओ और मेरे पास लेके आओ, दिखाओ मुझे कि तुमने ये क्वेश्चन बनाए हैं, और जो नहीं होगा वो मैं बता दूंगा। तो हर दिन ऐसे प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, तब जाके वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। यू नो, लॉट ऑफ टाइम वी से दिस गाय इज गॉड गिफ्टेड, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, गॉड गिफ्टेड है, इसका मैथ्स तो एकदम बवाल है, मतलब एकदम गॉड गिफ्टेड बंदा है, इसका फिजिक्स बहुत तगड़ा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बचपन में जस्ट पैदा हुआ और वो आइंस्टाइन की तरह एकदम ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इफ समवन इज वेरी गुड एट मैथ्स, it means he has definitely put a lot of effort in math. If someone is good in physics, it means it has definitely put a lot of effort in physics. So that is what you have to do. Okay, if you think that you are not good at a particular subject, to identify the subject and don't get afraid of it कि मेरा मैथ्स तो वीक है, मेरा फिजिक्स तो वीक है, मेरा कुछ नहीं होगा, अभी बहुत समय है। अगर मैं बात करूं, जो लोग 2 साल बाद आज से जेईई एग्जाम देंगे, जिन्होंने अभी 11th स्टार्ट किया है, या जो आज से 1 साल बाद देंगे, ठीक है ना, उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, लॉट ऑफ टाइम, समझ रहे हो। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तुम 1 साल की बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, और मैं खुद ऐसा मतलब एक फेज में था, जब मैंने एक ऐसा फेज था मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कि मुझे 11th के एंड का जो पोर्शन होता है ना, कुछ नहीं आता था, क्योंकि जनरली रश हो जाता है कोचिंग्स वगैरह में, जनरली 11th के लास्ट क्लास तक टाइम कम हो जाता है और चीजें रश हो जाती है, और फिर आप 12 में आ जाते हो और 12 पढ़ते पढ़ते 11th का भूल जाते हो, तो आउट ऑफ टच हो गया।
अब नवंबर में, अक्टूबर में 12 का सिलेबस कंप्लीट हुआ, मार्च में आपको जेई एग्जाम लिखना है, मार्च में आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, आप बोर्ड की तैयारी करो या फिर आप जेई की तैयारी करो, गॉड नोज। एंड देन यू रियलाइज कि आपका 11th में जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स थे, फ्लूइड वगैरह या कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में हो गया या केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स आयनिक हो गया, ये आपको अच्छे से आता ही नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है। तो वो 3 महीने में मैंने वो सबको कवर अप किया था। मेरे ऐसे भी कुछ फ्रेंड है जिसने 1 महीने 2 महीने में भी बहुत अच्छे से कवर करके एक डिसेंट जेई रैंक लेके आए। तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। अगर तुम ठान लो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। इफ यू डिसाइड दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। And if you think that it's undoable, it's not doable, it's impossible, then even God can't help you. Okay, so it's all about mindset, you know. Then during that phase of my journey in 11 to 12, means I had a very good schedule, and that is something which I recommend everyone. You should have a schedule, a proper schedule, ठीक है, समझ रहे हो? तो तुम्हें एक अपना एक शेड्यूल बनाना होगा बेसिकली कि when you will do self study, when you will go to school, or when you will do your coaching time. And a general question that student always ask me कि कितने घंटे पढ़ने से आईआईटी हो जाती है। And a lot of time in newspapers I see whenever there is a topper, one complimentary statement from that topper will be 7 से 8 घंटे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, there is nothing like 7 to 8 hours. If you even study for 24 hours a day, let's say, that's quite impossible. Even if you study, let's say 20 hours a day, there is no guarantee that you will get into JEE. It's not about study. It's about keeping things in head. And I will say the time you need to do that will totally depend on you. If you are a good learner, if you are a fast learner, you can do it in 4 to 5 hours. If you are a slow learner, you will take 7 to 8 hours. If you are or more slow learner, then you will take 10 hours or so. So it totally depends on you. So what I used to do means I never said कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, ऐसे करके हो ही नहीं सकता। You know, there is a lot of uncertainty in life. कोई भी दिन कुछ भी काम आ सकता है, and then you won't be able to read as a 8 hour 10 hours a day. So never fall for this trap. And yeah, I am seeing a common question in chat that please share your schedule. See, my schedule is not a miracle. There is no guarantee that using my schedule you will crack JEE. Your schedule should be your schedule. It should not anyone else's schedule. Your schedule should be something which you are comfortable with. Getting my point? That is important. You have to craft your own schedule. I can just give you hints. Like I used to get up around 8 in the morning. Then I used to do some physical like walking, jogging, or some meditation, then breakfast, and then started my self-study. Morning I used to do self-study, then I used to have lunch, bath, and all this for 1 hour break maybe. Then from 3:30 my classes used to start, coaching classes. So 3:30 to 8:30 night, coaching classes. Then after coaching, generally we are very tired, right? So take rest for maybe 1-2 hours. Maybe if I'm extremely tired, then I will have dinner quickly and then I will sleep. And then I will get up around 11-12 in night and then I will read for 1 or 2 hours and then again I will sleep. Sometimes I used to do like, okay, even if I am tired, then I will think, no, I have to do it because it's my goal. It's not like I have to complete 8 hours of self-study. It's not like I have to complete 6 hours of self-study. Well, my goal was like, I have to finish this particular TPP, this particular chapter before I sleep that day. Means I used to keep a diary, small notebook in pocket with me, and every night before sleeping I used to write things. Okay, next morning I have to do this, rotation DPP 1, chemistry DPP this, math DPP that, and then if I have to revise something, this that, I used to write it down, and the diary will always remain in my pocket or in my cupboard. And then next night I used to cross out the things which I done, and I used to circle out the things which were not completed, and it actually made me feel guilty. A lot of times when there was a lot of circles in the diary, it even makes me feel guilty that I didn't pay much attention that day. I was not very efficient that day. And then it makes me realize, okay, either I should set my goals more realistically, I should not be more ambitious. You know, students might think, एक रात में पहाड़ तोड़ दूंगा. So I must tell you, Rome was not built in a day. You cannot do that in one night. It's not something which you can do in one night, right?
ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि इट्स नॉट लाइक स्कूल एग्जाम्स ऑफ क्लास 9 10 यू स्टडी बिफोर अ नाइट एंड देन यू टॉप जेई इट्स नॉट इम्पॉसिबल डियर फ्रेंड so you have to put continuous effort in order to crack JEE you know so initially when I started this diary system so what I used to do, I used to set goals quite unrealistically. Means I used to think I will complete one exercise, 50, 60 question in one day. Then I realized no, this is not possible. This is highly impossible that solving so many questions a day. So I reduced the number. Rather than increasing my efficiency, means obviously you have to balance, you have to increase your speed and also you have to set your goal realistically. That is important. जो तुम कर सको उतना ही सेट करो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है अब तुम 10 क्वेश्चन बना पाते हो एक घंटे में और तुम लिख दोगे कि मैं 50 क्वेश्चन एक घंटे में बनाऊंगा तो दैट्स इम्पॉसिबल राइट समझ रहे हो तो यू हैव टू डू थिंग्स लाइक दैट ओनली सेट योर गोल्स एंड देन नेक्स्ट नाइट आई यूज्ड टू चेक कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ और उसके हिसाब से आई विल डिसाइड कि मुझे आज कितना स्टडी करना है और ट्रस्ट मी there will be no there will not be any single day in which you will say that कि आज तो मुझे पढ़ना ही नहीं है सब काम हो गया वो दिन तभी आएगा जब जेई एग्जाम एक दिन बाद हो मींस जेई एग्जाम की एक दिन दो दिन पहले ही ऐसा लगता है कि अब तो सब आता है अब बस एग्जाम दे के जल्दी से खत्म करते हैं फ्री हो जाते हैं समझ रहे हो ये ऐसे नहीं आने वाला है ऐसा तो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा कि अरे यार ये चैप्टर बाकी रह गया ये कम है ये कमी रह गई मतलब you know there are a lot of resources in the market there are several books thousands of books for JEE resources are infinite time is limited you know you will complete one book then your mind your brain will say अरे ये वाला बुक तो बेटर होता चलो ये वाला भी बना लेते हैं अरे ये वाला बुक मेरे दोस्त के पास है ये वाला भी बना लेते हैं and this cycle goes on so there is no sense of completion you will never actually feel satisfaction so that is also important a lot of students ask me ki which books you followed so let me tell you it's not going to help you first of all ठीक है ऐसा कोई गॉड बुक नहीं होता है कि पढ़ा और बस मेरा आईआईटी हो ही जाएगा यू नो बुक्स आर इम्पोर्टेंट but there is nothing as such god book okay well if I have to recommend books to someone I will say for physics HC Verma is a must you know HC Verma is quite underrated nowadays people think that HC Verma is rubbish but let me tell you HC Verma is so good every aspect it's wonderful from theory to good questions you know obviously the number of questions are less compared to the better versions like DC Pandey or the Cengage book but when it comes to actual theory not to spoon feed everything you know what most of the recent physics books are doing they spoon feed everything but HC Verma is not he don't spoon feed you right he will actually give you the bare minimum theory which is required and the question from where you can build upon so that is a very good book. Apart from that, this Cengage and DC Pandey are also good, but my priority is for HC Verma. Go for it, solve it completely. Then chemistry means in physical chemistry, I will say solving problem is more important than mugging up the theory. Physical is all about solving questions. So any good book with large number of problems is more than sufficient. It can be P. Bahadur, it can be R. C. Mukherjee, it can be N. Awasthi, it can be Neeraj Kumar. I had all four of them since I am quite a chemistry enthusiast. So I had a lot of chemistry books with me. But to be honest, I never solved all of them. Hardly I solved only one book. And I solved Neeraj Kumar because that was the best, my favorite among them. Okay. And in organic chemistry, I didn't had any extra book with me. I just followed my teacher's notes and few things from JDL because you know there is even in JDL there is a lot of extra stuff which we don't need. So stick to NCRT. That's bare minimum. If you are able to do NCRT, you are wonderful. Means NCRT तो mains के लिए perfect है. You can score 100 out of 100. Okay. I scored 115 out of 120 in chemistry. I just made one silly mistake, one calculation error in one of the mole concept question, that too. So I do regret that. Then organic, I will say for theory, go for NCRT. If you want to do a little bit higher, then you can go for Solomon Fry. For advanced level, you can sneak peek into Peter Sykes for a while. But again, these are not recommended books. So you can stick to NCRT, read all the reactions, all the theories which is there in organic chemistry.
Organic is quite logical. If you understand, you are good to go. And organic also, you have to solve a lot of problems. So for problems, there are books like MS Chauhan, Himanshu Singh. So you can get any one of them, right? Even your coaching module or the module which you get from Amazon is good. Means you can solve the practice papers. That's it. You need that. And for maths, maths, I will suggest you can go for Singh, you can go for Arihant's, like the separate books, na S.K. Goyal or Amitam Agrawal, the separate books for different topics, right? These are also good book. IIT JEE Mathematics is also there, a good book. Then that's all. Means maths again, you have to solve a lot of problems. So any book with a good number of question, you can definitely get it and solve it. But again, I will recommend one thing. A lot of students generally end up buying a lot of books, several books. Okay, and ultimately what they do, they will never solve all of them. Even I did that. I had a stack of this many books with me, and I never touched majority of them. In every subject, my whole time actually, टाइम खत्म हो जाता था कोचिंग का बुक और एक बुक मैक्सिमम बनाते बनाते दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, समझ रहे हो? तो जब कोचिंग का बनाएगा आदमी और बुक एक एक्स्ट्रा बुक बनाते बनाते समय खत्म हो जाता है, तो इतने सारे एक्स्ट्रा बुक मैं कैसे बनाऊंगा? उससे फालतू में क्या होता है कि ना मैं ये बुक अच्छे से बना पाता हूँ, ना मैं वो बुक अच्छे से बना पाता हूँ। दुनिया भर का तो बुक खरीद लिया, एक भी बुक अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कि एक ही बुक उठाओ, एक ही बुक पकड़ो और उस बुक को 100% कंप्लीट करो, 100%। एक एक क्वेश्चन बनाओ उस बुक का, एक एक क्वेश्चन लगा दो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, समझ लो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बुक हो गया, टाइम बता दिया मैंने, देन all these ups and downs will come. There will be lot of tests. Giving test is also very important. Why test is important? Because tests actually let you know that where do you stand, कितने दूध में हो, कितने पानी में हो, ठीक है? वो आपको बताता है टेस्ट। जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो प्रैक्टिस टेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड प्रैक्टिस टेस्ट इज लाइक वार्म अप मैचेस। देयर यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि कौन सा ऑर्डर, कौन सा टेक्निक एक्चुअल पेपर में मैं लगाऊं तो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। एंड मतलब मैं जहां पे था वहां पे there was a system of fortnightly or weekly or even monthly tests, so we had a lot of tests, maybe I think more than 100 tests before actual JEE exam in 2 years. So all these tests is basically a practice match for me for the real battle, that's the JEE main or JEE advanced, right? So वो बहुत important है। एंड टेस्ट में क्या होता है ना, आपके पास लिबर्टी होती है, देयर इज नथिंग टू लूज, यू डोंट हैव एनीथिंग एट स्टेक, राइट? मेनी पीपल विल से रैंक खराब आ जाएगा। रैंक खराब आ जाएगा तो क्या होगा? यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सीट इन IIT on basis of all these practice tests, right? Your seat at IIT will be determined by the final exam, that is the JEE main or JEE advanced which you are going to write. So you have to optimize your strategy. तुम्हें टेस्ट दे दे के अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करना है, इस तरह से एक स्ट्रेटजी बनानी है कि जो तुम फाइनल एग्जाम में लगाओगे। लाइक मैं बताता हूँ अपने बारे में। तो जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो कैसा होता है पेपर, सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। तो मैं पहले इसी ऑर्डर में पेपर सॉल्व करता था, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, ठीक है? तो कुछ समय के बाद मैंने रियलाइज किया कि जैसे जैसे फिजिक्स टफ होता गया, पहले तो वेक्टर होता है ना, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, तो ये सब तो इजी चीजें हैं, चिंदी चीजें हैं, तुरंत हो जाती है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब एक बार जब वर्क एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशन वगैरह आ गया तो फिजिक्स भी टफ हो गया। और क्या होगा कि फिजिक्स इज टफ, फिजिक्स में लग गए 1.5 घंटे, केमिस्ट्री जल्दी बनाने के चक्कर में सिली मिस्टेक हो गया, मैथ तो है ही हेवी, कैलकुलेशन हेवी होता है मैथ्स में, तो टाइम देना ही पड़ता है। तो देन मेरे टीचर ने सजेस्ट किया कि योर स्ट्रेटजी इज रॉन्ग। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू शुड ऑलवेज डू दोज क्वेश्चंस फर्स्ट which you think easy, which you think are doable within minutes. There are +4 -1, right? Even if it is a tough question, you are going to get 4. अगर वो क्वेश्चन बहुत हार्ड भी है तो भी तुमको 4 ही मिलेगा, क्वेश्चन इजी है तो भी तुमको 4 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत ही इजी क्वेश्चन किया तो तुमको कम मार्क्स मिलेगा और जिसने टफ क्वेश्चन किया उसको बहुत ज्यादा मार्क्स दे देंगे। तो हमें एक एग्जाम में मैं तो ये करने लगा था लास्ट क्लास में कि पहला 5 मिनट पूरा पेपर ऐसे गो थ्रू किया,
और उस पे क्वेश्चंस चुनने थे मुझे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन मुझे दिख गए कि जो तुरंत एकदम विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स, विद इन 2 मिनट 3 मिनट, बस थोड़ा सा फॉर्मूला, एकदम प्योर फॉर्मूला बेस्ड, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कर लिया। तो इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो टेल मी क्रिकेटर बैटिंग करने आए, ठीक है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट इज अ वेरी कॉमन गेम, सो आई विल टेक दैट एग्जांपल, एंड द टीम व्हिच इज चेजिंग अ टारगेट, और लेट्स से फर्स्ट बैटिंग ही कर, इट डजंट मैटर, loses first wicket in power play, first 5 wickets in power play में 5 विकेट गिर गया, तो तुम अगर उसके बेस्ट बैट्समैन को भी, तुम दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को भी अगर 6th या 7th पोजीशन पे भेजोगे बैटिंग करने, he is not going to hit sixes, right? आके मारेगा क्या छक्के उतरते के साथ ही, he will take his time, right? So that is what happens in exam. If in exam you start with a very tough question, let's say very heavy question, you take it as a challenge, ये तो challenge है, मैं तो बना के रहूंगा इस question को, you know what will happen, you will lose a lot of time, you may get it right, you may get it wrong, and the thing is you will panic कि अरे मेरा इतना टाइम तो एक ही क्वेश्चन में निकल गया, बहुत कम क्वेश्चन में निकल गया, and then you will realize कि you have to do everything fast, and in that fast doing everything in hurry, you will make a lot of mistake and you will mess up. And let's imagine a situation where a guy comes to bat and he gets a no ball or maybe a free hit in the very beginning and he hits 6. If you remember the Russell innings versus RCB where he got a no ball and then smashed a lot of 6 in that IPL match, right? That is where he got the confidence. So if you start hitting 6 from the first ball, the kind of confidence you will have, you know, it's unparalleled. And that is what I will correlate with exams as well. Let's say you give an exam, you choose 10 questions or 15 questions which are very silly. Just put the formula, get the answer type, right? Then what will happen? Within 5 or 10 minutes of the beginning of exam, you are done with 20 questions or 15 questions for that matter. तो 15 क्वेश्चन भी अगर तुम्हारा 15 मिनट में हो गया तो कितना, 15 into 4 60 मार्क्स हो गए। कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना चाहिए होता है जेई मेन में? आई थिंक अब तो परसेंटाइल हो गया, बट अपने टाइम पे कट ऑफ फॉर जनरल वाज अराउंड 120 100 ऐसा टाइप का होता था, समझ रहे हो? तो तुम्हारा हाफ तो हो ही गया, 15 मिनट में तुमने हाफ ऑफ द कट ऑफ क्लियर कर दिया, बिंदास, सब तो टेंशन फ्री होकर बैटिंग करोगे तुमने आते के बाद पहले ओवर में मार दिए 2-3 छक्के, तो तुम्हारा तो पूरा प्रेशर रिलीज हो गया, समझ रहे हो? एग्जाम का पूरा प्रेशर रिलीज हो गया, तुमने आते के साथ ही 20 क्वेश्चन इजी इजी तड़ातड़ बना दिए आधे घंटे में, पूरा एग्जाम का प्रेशर बदल गया, एकदम जज्बात बदल गया, पूरा तुम लीड करोगे। और वही आते के साथ अगर 10 क्वेश्चन बनाने बैठे एक भी नहीं बना, कॉन्फिडेंस इतना लो होगा कि आता हुआ क्वेश्चन भी हो सकता है गलत हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पिक करो और हिट करो, पिक एंड हिट मैं बोलता हूं उसको। यू चूज द क्वेश्चन एंड यू हिट द क्वेश्चन, नेवर डू इट मतलब सीरियल वाइज। तुम 5 मिनट 10 मिनट एक टाइम लो, पूरा पेपर गो थ्रू करो, तुमको जो जो क्वेश्चन लग रहा है कि तुम तुरंत तुरंत बना सकते हो ना, फटाफट वो निकालते जाओ, समझ रहे हो? ऐसा है। देन एक और स्ट्रेटजी होती है कि यू गो विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे मैंने ये कई बार ये भी किया था कि माय फेवरेट वाज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आई यूज्ड टू टेक मतलब ऐसे 10 मतलब आधे घंटे में मेरा हो जाता था 30 क्वेश्चन, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। अगर इफ इट्स नॉट अ वेरी कैलकुलेशन हेवी पेपर, I can do it in 20 to 30 minutes, full chemistry. And then the extra time, एक घंटे में मान के चलता था कि 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ का। मैं आधे घंटे में केमिस्ट्री निपटा दिया और जो आधा घंटा बचा वो मैथ्स और फिजिक्स में बांट दिया, डिपेंडिंग अपॉन कौन ज्यादा लेंदी है उसके हिसाब से उसको टाइम दे दिया। ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी है क्योंकि इन जनरल केमिस्ट्री में थोड़ा कम टाइम लगता है, तो आप केमिस्ट्री फटाफट निपटा सकते हो और फिर मैथ्स फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम देके कर सकते हो, समझ रहे हो? तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक होता है तुम्हारा ना लास्ट मोमेंट, मतलब मेरे जो टीचर कहा करते लास्ट साइकिल। तो देखो साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, एक तुम्हारा बिगनिंग फेज था, जैसे मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो वहां पे आपको यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यू हैव टू फाइट बिकॉज एवरीवन एल्स इज फाइटिंग, यू नो देयर इज नथिंग एज सच गॉड गिफ्टेड। आई टोल्ड यू There's nothing as such God gifted, कोई भगवान नहीं होता, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, वो उसकी मेहनत का नतीजा है। ये बस हम अपनी असफलताओं को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी आलस को जस्टिफाई करने के लिए बोल देते हैं ये बंदा तो गॉड गिफ्टेड है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी मेहनत को तुमने नहीं देखा है,
उसने जो मेहनत किया ना उसको आपने नहीं देखा है। आप उसकी मेहनत को ऐसे मजाक मत उड़ाओ कि गॉड गिफ्टेड है बोल के। ये उसका मेहनत है कि आज वो इतना अच्छा कर रहा है और हम उसको गॉड गिफ्टेड बोल रहे हैं, ठीक है। और वो आप भी कर सकते हो। तो बिगनिंग फेज थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों का। फिर होता है आपको इंटरमीडिएट स्टेज, वहां पे अप्स एंड डाउन आते हैं कई बार। बीच बीच में तुम्हारे ओलंपियाड, केवीपीवाई वगैरह एग्जाम्स होंगे, अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, समझ लो। अब तो देखो हमारे टाइम पे फोन था नहीं, मतलब फोन की जरूरत ही नहीं थी पढ़ाई के लिए, और इंटरनेट भी जियो आने के बाद ही आया। नाउ मतलब अनबिलीवेबल कि बिना फोन और बिना इंटरनेट के पढ़ाई हो, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यू हैव लॉट ऑफ एप्स इन योर डिवाइस, उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको, गेम्स वगैरह, ठीक है अभी तो बैन है कुछ दिन के लिए, अब देखते हैं फिर वापस पबजी आ जाएगी। और कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, बच्चे ई गेमिंग खेलते हैं। फिर सोशल मीडिया का, मतलब तुम पढ़ रहे हो, मतलब तुम्हारा क्लास चल रहा है लेट्स से, है ना। तो हमारे टाइम पे तो ऑफलाइन क्लासेस होती थी, वहां पे तो फोन आप निकाल ही नहीं सकते हो। अगर आपने फोन निकाला, पकड़े गए तो फोन सीज हो जाएगा, पेरेंट्स को बुलाएंगे, डांट पड़ेगी, ऐसा सीन होता था। बट अभी क्या है कि तुम्हारी पढ़ाई भी फोन पे ही होगी, सब कुछ फोन पे ही होगा, इंटरनेट पे ही होगा। अब क्या है, तुम पढ़ रहे हो, मान लो तुम्हारे क्लास चल रहा है, तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज आया, यार अभी ये करते हैं, कुछ भी मैसेज आया, है ना, नोटिफिकेशन आ गया, तो डिस्ट्रैक्शन तो होता है ना। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचना है। होगा क्या, तुम्हारा क्लास चल रहा है, तुम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फोन पे बुक खोल के या कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, दोस्त का मैसेज आ गया, अब तुम वो सब छोड़ के उसको रिप्लाई देने में लग गए, 5 मिनट 10 मिनट तुम्हारा चला गया। उसके बाद उसने कुछ ऐसा बोल दिया, तुम सोचोगे बैठ के, अरे थोड़ा सा और टाइम चला गया। तो तुम इस तरह से टाइम लूज कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बट तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे कैसे बचेंगे? तो हमारे टाइम पे तो ये चैलेंज था ही नहीं, तो मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस किया नहीं। और मेरे टाइम पे स्मार्टफोन था भी नहीं, मतलब मेरा जो स्मार्टफोन था मुझे मिला 12th में, ठीक है, जब मैं रशिया जा रहा था तब मुझे मिला। मतलब मेरे को मॉस्को जाना था एक, ठीक है, एग्जाम के थ्रू मैंने सॉल्व एंड विन एग्जाम दिया था, और उसमें मुझे मॉस्को ट्रिप मिला था, तब मुझे स्मार्टफोन खरीद के मिला कि बाहर जा रहा हो तो मैं फोन चाहिए होगा, तब मुझे फोन मिला था। उसके पहले तो मेरे पास फोन था भी नहीं, और इंटरनेट हमें अलाउड भी नहीं था। मतलब क्लासेस में तो हम फोन निकाल ही नहीं सकते, चाहे आपका कीपैड वाला फोन भी क्यों ना हो, यू कैन नॉट टेक आउट योर फोन, ठीक है। हमारा बस फोन और इंटरनेट का काम रिजल्ट देखने और फॉर्म भरने तक का ही था। बट अब तो पढ़ाई भी सब कुछ इस पे ही हो रहा है। फिर भी मतलब हमारे टाइम पे भी गेम्स वगैरह तो थे ही, क्लैश ऑफ क्लैन था, मिनी मिलिशिया उस टाइम पे ट्रेंडिंग होता था, लोग खेलते थे, मैंने भी एक दो बार खेला है। बट यू हैव टू रियलाइज कि विच इज द बिगर गोल, short term happiness, you want short term goal or you want long term goal? This is a trade off where you have to decide. You know, you can play game, you can be on Facebook all the time, you can chat, you can like do whatever you want on social media, but this is a temporary happiness. In long term you are not going to be happy, trust me. It's unworthy. Social media is totally unworthy for student. Even I sometimes feel that it's usually bullshit having social media, you know. क्या है, अब आपको क्या करना होगा, मतलब मेरा भाई भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उसको क्या करके देता हूँ कि फोन में तो यार तुम, अगर आप एक ऐसा फोन अरेंज कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपका ये Amazon ऐप हो, या जिस भी ऐप से आप पढ़ाई कर रहे हो वो रखो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। उसमें कोई ऐप नहीं, सिर्फ Amazon ऐप या जो भी ऐप पे आप पढ़ाई करते हो वो रखो, और अपने बुक्स रखो। एंड ये पॉसिबल थोड़ा नहीं है, सबके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होता है कि एक स्पेशल सेपरेट फोन रखे, आपको उसी फोन में सब कुछ करना है। तो द बेस्ट थिंग इज, यू व्हेनेवर यू डू स्टडी, जब भी आप पढ़ाई करते हो, स्विच ऑन द डीएनडी, turn off all the notifications and make a promise to yourself कि I will not worry about all this thing as long as I am studying. जैसे मेरा पढ़ाई खत्म होगा उसके बाद मैं ये सब करूंगा। दिन में एक टाइम दे दो यार, मतलब हर ऐप को, मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे मुझे भी एक बुरी आदत लग गई थी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, फेसबुक स्क्रॉल करने की। मैंने क्या किया, तुरंत एक हफ्ते में इसको ठीक कर दिया। मैंने पहले आधे घंटे का टाइमर लगाया इनके ऊपर, मैं देखा आधा घंटा मेरा क्रॉस हो रहा है, ठीक है, आधे घंटे से ज्यादा यूज हो रहा है, तो मैंने आधे घंटे का टाइमर लगाया। और कुछ दिन आधे घंटे पे जब ऐप बोलता है कि यू हैव डन योर हाफ आवर, थोड़ा शर्म आता है यार कि वो टोक रहा है, तो मैं भी बंद कर दूं यूज करना उसको। उस तरह से बंद किया उसको, पहले आधे घंटे पे लाया इसको, एक हफ्ते 2 हफ्ते आधे घंटे पे रखा, धीरे धीरे और कम किया, फिर उसको 20 मिनट पे लाया, उसके बाद उसको 15 मिनट पे लाया, 15 से नीचे नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है।
तो वही बोल रहा हूँ, गोल आपको रियलिस्टिकली सेट करना होता है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। इफ यू आर यूजिंग फेसबुक और तुम कल को बोलोगे सुबह उठ के आज से तो मैं फेसबुक एकदम बंद, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। एक दो दिन के लिए होगा, फिर तुमको याद आएगी चलो फेसबुक खोलते हैं, है ना। तो धीरे धीरे उसको करना होता है, किसी भी एडिक्शन को ना धीरे धीरे कम करना होता है। इट्स नॉट कि तुमने सडनली डिसाइड किया और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज। देखो जेई के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंटिन्यूअस एफर्ट मारने होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम आज पढ़ाई कर रहे हो, 10 दिन बैठ गए, कोई पढ़ाई नहीं हुई, फिर टेस्ट आया तो फिर से किताब खोले, पढ़ाई की, फिर 10 दिन बैठ गए, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा सर। आपको हर दिन पढ़ाई करनी होगी, मैं बोला हर दिन गोल सेट करना होगा। इतना है ना जेई के लिए, इतना बड़ा सिलेबस होता है ना, इतना वास्ट सिलेबस है आईआईटी जेई का कि 2 साल एक्चुअली कम ही पड़ जाता है लोगों को। पर अगर देखा जाए ना तो 2 साल बहुत ज्यादा टाइम है। मैं सच बताऊं, अगर दिल से शिद्दत से पढ़ाई की जाए ना, मेहनत की जाए अच्छे से, एकदम ऑनेस्टली, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, मतलब आप अच्छे से स्ट्रेटजी वाइज करते हो ना काम, तो 2 साल भी बहुत बड़ा टाइम है, आराम से किया जा सकता है। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है आपको। 1 साल भी बहुत बड़ा चीज है, 1 साल 6 महीने में भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। लोग अक्सर बोलते हैं हार्ड वर्क करो। देखो हार्ड वर्क इज वर्थ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन इज वर्थलेस। देखो हार्ड वर्क तो किसान भी करता है, हार्ड वर्क तो साफ सफाई करने वाला आदमी भी करता है, बट यू हैव टू थिंक इन अ डायरेक्शन। वेक्टर की तरह बनना है आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देना होगा अपने आप को। तुम पढ़ रहे हो, अब मतलब तुम पढ़ रहे हो, मतलब लेट्स से एग्जांपल, तुमने स्टार्ट की प्रिपरेशन, तुमको वेक्टर चैप्टर बहुत अच्छा लगा या यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छा लगा। अब तुम 1 महीना यूनिट एंड डायमेंशन पागलों जैसे बना रहे हो, तुमको बहुत अच्छा लगा, यूनिट निकालना बहुत इजी लगता है सबको ना। यूनिट डायमेंशन सबको इजी लगता है कि नहीं, एकदम चिंदी सब्जेक्ट है, पटापट यूनिट निकालना होता है, डायमेंशन निकालना होता है, खूब मजा आता है बच्चा लोग को यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन बनाने में। पर आपको ये समझना होगा कि आईआईटी में कितना क्वेश्चन आता है यूनिट डायमेंशन पे, हार्डली 1 क्वेश्चन आता है, तो इतना टाइम हम उस पर वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको एनालिसिस करनी होगी खुद से, ये कोई आपको बताएगा नहीं। स्ट्रैटेजी ना जितने लोग बताते हैं ना, सब फ्रॉड है। स्ट्रैटेजी मतलब आपको अपनी बनानी होगी। अब मैं अगर कुछ बोलूंगा ना यहाँ पे, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी होगी, वो मतलब इन जनरल एक होगा, मतलब वो 90% 70% ही ट्रू होगा, 100% ट्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि सब बच्चे का सिचुएशन कैपेसिटी अलग अलग होता है। मैं बोलूंगा इरोडोप बनाओ फिजिक्स में, अब हो सकता है कि कुछ बच्चे इरोडोप बना ले क्योंकि उनका फिजिक्स स्ट्रांग है, हो सकता है कुछ एनसीईआरटी भी नहीं बना पा रहे हो, तो उनके लिए तो डिजास्टरस होगा ना इरोडोप बनाना बोल दो तो, समझ रहे हो। तो हर आदमी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, अपने हिसाब से होगी, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रियलाइज कि मेरा स्ट्रैटेजी मेरे लिए कैसे बेस्ट होगा, वो तुमको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे वेटेज पूछ रहे हैं मुझसे, तो देखो हर चीज आपको ये चम्मच से लेके मुंह में नहीं खिलाएगा, स्पून फीड नहीं होता है। यू गो, इंटरनेट है तुम्हारे पास यार, हमारे टाइम पे नहीं था। हम कैसे वेटेज देखते थे, तो हमारे पास अरिहंत की एक बुक होती थी प्रीवियस ईयर पेपर, वहां खोल के हम देखते थे परसेंटेज पे कॉम्पोजिशन ऑफ जेई पेपर, समझ रहे हो। तो तुम्हें हर चीज कोई ऐसे ला के पड़ोस के नहीं देगा कि अच्छा ये कर लो, यू हैव टू फाइंड इट ऑन योर ओन, समझ रहे हो। तो तुम ढूंढो, इंटरनेट पे ढूंढो कि जेई में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी अपनी रिसर्च करो, थोड़ी अपनी एनालिसिस करो, और उसके आधार पर अपना एक बनाओ कि मुझे इस चैप्टर को इतना टाइम देना है। देखो चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी वेरी, थोड़ा दिमाग से भी खेलना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ऑफ है, ठीक है, ट्रेड ऑफ है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है उसको पहले कर दूंगा। मतलब मेरे टीचर कहा करते थे आईआईटी जेई में अच्छा रैंक वो नहीं लाता है जो 2 साल मेहनत करके पढ़ाई करता है, आईआईटी जेई में अच्छा रैंक वो लाता है जिसने 2 साल तो अच्छे से पढ़ाई की ही है, जिसने पढ़ाई तो अच्छे से की है, साथ ही साथ उसने लास्ट के 2 महीने, लास्ट के जो टाइम होता है ना, लास्ट का जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और जो बीच का जो पीरियड होता है, वो टाइम आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा जेई रैंक। क्योंकि देखो तुम पढ़ लिए,
तुमने सब कुछ पढ़ाई कर लिया, सारा चैप्टर पढ़ लिया, पर क्या याद रहता है? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली। मैं आज एक चैप्टर तुमको पढ़ाऊंगा और 10 दिन बाद पूछूंगा, 90% चीजें गोल हो जाएंगी। हमारा मेमोरी लॉस एक्सपोनेंशियल होता है, e टू द पावर -x जैसा डिके होता है उसका। e टू द पावर -x का ग्राफ पता है? ऐसे डिके करता है, स्टीप स्लोप। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट वीक में ही 50% चीज गायब हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे और गायब होते रहता है, और एक समय के बाद अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, पूरा गायब हो जाएगा। जैसे हिंदी लिखना, बहुत से लोग हिंदी में नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो हर चीज हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो आज अगर मैं तुमसे पूछूं क ख ग घ लिख सकते हो क्या पूरा? मैं खुद नहीं लिख पाऊंगा शायद, क्योंकि वो प्रैक्टिस छूट गया, वो भूल गया मैं, है ना? तो वही जेई में भी यही होता है, आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है, 2 साल या 1 साल में पढ़ना होता है, और तुरंत जैसे चैप्टर खत्म हुआ नहीं कि प्रैक्टिस तो छूट गया। काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, प्रैक्टिस छूट गया। प्रैक्टिस छूट गया तो धीरे धीरे भूलने लगेंगे। तो यू हैव टू प्लान दैट थिंग। जैसे जो 11th में है अभी, ये जो 12th में बच्चे हैं अभी, उनका 11th का प्रैक्टिस छूटा हुआ है। तो तुम्हें देखो बच्चे, एक चीज अपने दिमाग में एक चीज डालनी है कि तुम्हें 11th भी साथ साथ टच में रहना है, नहीं तो फिर बाद में भारी समस्या में पड़ जाओगे। क्योंकि होगा क्या कि तुम 12 कर लोगे पर 11th पूरा तुम्हारा गोल हो जाएगा। तो जब तुम 12 कर रहे हो ना, साथ ही साथ ऐसा प्लान बनाओ, जो तुम्हारी स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा था ना, स्ट्रेटजी में ये चीज डालो कि मुझे वीक के कितने दिन 11th का पोर्शन करना है, मुझे वीक के कितने दिन 12 का पोर्शन करना है, ये चीज ध्यान रखना। मैं ऐसे करता था, 5+2 था मेरा, 5 दिन 12 पढ़ूंगा, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, छुट्टी में अगर 12 का लोड ज्यादा है तो वो करूंगा, और अगर लोड जहां मुझे टाइम कम बच रहा है, वो टाइम पे मैं 11th के जो बड़े बड़े चैप्टर है, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये बड़े बड़े चैप्टर रिवाइज कर लूंगा धीरे धीरे, ताकि ये भी मेरे टच में रहे और पहले का पोर्शन भी टच में रहे। फिर जो हमारी टेस्ट सीरीज होती थी, हमने उसमें रिक्वेस्ट किया सर से कि सर इसमें 30% वेटेज, 30% पोर्शन 11th का भी डाल दो, ताकि 11th का हम रिवाइज भी करें, टेस्ट के बहाने ही सही, हम पढ़ तो लेंगे। तो इस तरह से हमारा होता है चला, ठीक है। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट फेज में क्या होगा ना, जब तुम सब कुछ कर चुके होगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड फॉर जेईई 21। डिमोटिवेशन की बात ही नहीं है, ये तुम्हारी अपनी सोच है। अगर तुम सोच के जाओगे ना कि तुम पहाड़ तोड़ सकते हो, तुम पहाड़ तोड़ दोगे, और अगर तुम सोच के जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा अगर कुछ होना भी देगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये तुम्हारे परसेप्शन की बात है। तुम्हें मान के जाना है कि तुम फोड़ सकते हो, और तुम बिल्कुल फोड़ सकते हो। तुम्हें कॉन्फिडेंस हाई रखना है, और उसका तरीका होता है। कॉन्फिडेंस कैसे हाई रखोगे? तो टेस्ट दो, इजी टेस्ट दो। देखो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ना क्या किया गया, जब जेईई मेन का एग्जाम था, उसके साथ हमारा जो कोचिंग का जो प्रैक्टिस टेस्ट होता था, AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती थी, वो बड़ा टफ होता था। उसमें एकदम मेंस लेवल में एडवांस के क्वेश्चन होते थे, बनता किसी से नहीं था, सबके स्कोर आते थे 50%, 60%, ऐसा स्कोर आता था सबका। तो बड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते थे हम लोग कि मेंस में भी 50% स्कोर कर रहे हैं, जबकि वहां पे तो 70-80% स्कोर होना चाहिए। तो एक हमें पता था, सेल्फ रियलाइजेशन था अंदर से कि मेंस में कभी भी ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, और अगर ये पेपर में मैं 50% ला रहा हूं, तो मैं मेंस के पेपर में भी 50 से तो ऊपर ही लाऊंगा, ये तो फॉर श्योर था, ठीक है। अब क्या किया गया, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए लास्ट के 1 महीने जितने भी टेस्ट हुए, उसमें एक्चुअल जेईई मेन का क्वेश्चन उठाया गया। जितने भी जेईई मेन के उनके पास डेटाबेस थे, लास्ट के 1 मंथ में जितने भी हमारे 10 या 15 टेस्ट हुए, तब हमारी टेस्ट फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 2 बार 3 बार की हो गई थी। तो एक्चुअल क्वेश्चंस हमें दिए जाते थे, और एक्चुअल जेईई मेन के क्वेश्चन तो मेजॉरिटी लोगों ने पहले ही बना रखे थे, और ऐसे भी इजी होता था। तो टेस्ट में 360 में से मैं बता रहा हूं, मेरे खुद के स्कोर लास्ट में 340 प्लस होने लगा। हर टेस्ट में 360 में 340, 330, 335 ऐसा स्कोर आता था। और नॉट ओनली मी, मतलब एवरेज स्कोर 250 हो गया था पूरे बैच का, क्योंकि सबके तो क्वेश्चन किए हुए थे। अब वो माइंडसेट से अगर सोचो सब एग्जाम देने गए मेंस का, तो कितना अच्छा जाएगा कि वाह मैं तो मतलब 250 स्कोर कर रहा हूँ, यहाँ भी करके आऊंगा। तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है। अब मैं ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ,
तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक करके उस पे हम आंसर करते हैं. तो what advice you will give who is targeting just for mains? So my dear friend, if you are just targeting for mains, you need to follow only NCERT level. That is more than sufficient. You know, mains is something which is very easy. But trust me, it's very easy. मतलब लोगों को hard लगता है. But mains की अगर तुम क्वेश्चन देखो ना, तो 70 to 60% काफी इजी होता है. वो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड होता है एंड इजी होता है, काफी बिल्कुल ही इजी होता है. आप बस एनसीईआरटी अगर फॉलो करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बना लो और मेंस के प्रीवियस ईयर बना लो, तो आपका हो जाएगा. बट देखो तुमको ना सारे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं कि तुम ऊपर ऊपर से सारा चैप्टर पढ़ के चले गए. अच्छे से करो, डिटेल से एनसीईआरटी कर लो, हर चैप्टर का रिवीजन करो अच्छे से और फिर एग्जाम दो. दैट इज द बेस्ट थिंग. How was your food diet for JEE? Well, it's a very good question. I'm a good foodie, so I never compromise with my food. So even though मतलब कुछ भी हो जाए, मैं बीमार भी रहूं, तो मैं खिचड़ी विचड़ी प्रेफर नहीं करता हूँ. मेरे को थोड़ा नॉन वेज चाहिए होता है या मतलब स्पाइसी फूड चाहिए होता है. तो I'm थोड़ा बिग फूडी, so I can't compromise with my food. But yeah, diet is important. Especially for those who are staying in hostel, you should have, मतलब हमारे टीचर्स बोला करते थे जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनको थोड़ा डेट्स रखो, वॉलनट रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो, ताकि हेल्दी खाओ. कई बार ऐसा होता है कि तुम, जैसे कई बार सुनने में आता है कि टाइफाइड हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई, क्रोनिक डिजीज हो गया बड़ा, तो 1 महीने का धक्का लग गया. तो ये सब चीजें नहीं करना. डाइट मतलब फ्रूट्स वगैरह रखो, हेल्दी डाइट रखो यार. मतलब ठीक है, आई डोंट वांट, मतलब नॉट वेरी डाइट कॉन्शियस, बट आई विल से योर डाइट शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड यू शुड हैव fruits, dry fruits, non-veg, protein. मतलब if you are a vegetarian, go for paneer and soybean pulses, right? So you should be protein होना चाहिए and everything should be balanced. You know, one thing which I will say, since it's a question on diet, कि workout is also important. You know, I am right now, I was very chubby after JEE because I gained a lot of weight just by sitting and studying. So even in lockdown, gym is not required. You can do some meditation or simple workout at home as well. ठीक है ना, तो वेट भी बैलेंस रहेगा. एंड मेडिटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स यू टू पीस आउट बेसिकली. यू नो, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि फ्री टाइम पे मैं क्या करता था, ये भी एक क्वेश्चन पे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे अपने आप को रिलैक्स करता था. तो सोशल मीडिया वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी. मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है, मैं तो हफ्ते में एक बार कभी खोला तो खोला, ऐसा रहता था मेरा. गेम वगैरह भी मैं बहुत कम खेलता था, मतलब 10 तक करता था गेमिंग, बट उसके बाद फिर छोड़ दिया. देन आई यूज्ड टू लिसन म्यूजिक. मतलब फ्री टाइम में मैं बालकनी में चला जाता, बालकनी में स्टार गेजिंग की, थोड़ा बहुत ऐसे अलोन, मैं थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता था. और नहीं तो दोस्तों के साथ गप्पे मार लिए. अगर हम ग्रुप में स्टडी करते हैं कभी, तो उनके साथ तो मतलब पिलो फाइट वगैरह, मतलब ग्रुप में आ गए तो फिर तो बहुत ही इनकी, हम लोग कुछ भी मतलब हाइड एंड सीक तक खेल लेते थे, पिलो फाइट खेल लिया थोड़ा बहुत. मतलब रूम में, यू विल बिलीव, रूम में कबड्डी खेल रहा है, रूम में ही कबड्डी चालू. रूम में मतलब हमारे टाइम पे कबड्डी का काफी क्रेज था, तो रूम में कबड्डी खेल लिया आधे घंटे के लिए, रूम में बैडमिंटन खेल लिया. तो इस तरह से करते थे. मतलब हमारा ऐसा था कि हमें लास्ट में सेल्फ स्टडी के लिए एक रूम मिल गया था, तो हम उस रूम में सेल्फ स्टडी करते करते किसी ने रैकेट ले आया, हम रूम में बैडमिंटन खेल रहे हैं, बाहर टीचर नॉक कर रहे हैं, क्या हो रहा है अंदर में, आवाजें क्यों आ रही है, तुरंत सब किताब खोल के पढ़ना चालू. एंड यू नो व्हाट, आई वाज लाइक, मतलब हमारा चल रहा था तब, आई थिंक कुछ तो बोला था सेंटर ऑफ मास का रिवीजन करने, और मैंने बुक खोला मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स का था ही नहीं वो, आई थिंक इलेक्ट्रिकल, मतलब मैग्नेटिज्म वगैरह कुछ तो खोल लिया आउट ऑफ नोवेयर. इधर कॉपी में केमिस्ट्री लिखा हुआ है, सर आके देख रहे हैं, तुम बुक खोले वो मैग्नेटिज्म का, कॉपी में केमिस्ट्री लिखा करके तुम लोग रूम बंद करके. इतना मतलब फनी था. मतलब इस तरह से टाइम पास करते थे हम लोग, लेकिन बहुत कम. यू हैव टू बैलेंस. ऐसा नहीं कि हमेशा खेलते रहे तो पूरा दिन खेल लिया. आधे घंटे 1 घंटे दिन में कर सकते हैं. स्ट्रेस आउट करना, मतलब स्ट्रेस बस्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. शाम में निकल गया वॉक पे, है ना, फ्रेंड्स को बुला लिया, कहीं चले गए, साथ में कुछ खा लिया. हरीलाल करके था सामने में मिठाई की दुकान, वहां गए, समोसे खा लिए, आ गए वापस घूम फिर के. प्लीज से अबाउट स्ट्रैटेजी 2021, कितने आवर्स देनी चाहिए हर सब्जेक्ट पे. बिल्कुल फोड़ सकते हैं आप 2021. देखो सब्जेक्ट पे कितना आवर देना चाहिए, दैट विल बी योर कॉल. आई एम टेलिंग यू, नो, आई विल से 2 आवर्स दे दो, बट इट्स वेग, इट्स टोटली मीनिंगलेस. मैं अगर यहाँ से बोल दूंगा 2 घंटे और तुम्हारा वो सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो है, 2 घंटे में क्या होगा. तो ये तुम्हें अपनी एनालिसिस करनी होगी, अपने आप को देखो
एनालाइज करो कि तुम्हारा कौन सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सबसे स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम टाइम दो, जो वीक वाला है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देके उसको भी ऊपर उठाओ। समझ रहे हो? इस तरह से होता है। हाउ मेनी क्वेश्चन आर सफिशिएंट टू सॉल्व इन जेई? Well, it depends on you. You merely want to pass. Just solve 30-40 questions, and then if you make mistake, will be on the borderline. To be on safer side, I will say, अरे यार कौन मना कर रहा है, जितना मन उतना करो ना, मतलब जितना कर सकते हो। ऐसा थोड़े है कि मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था तो मेरे बगल में एक बच्चा था, वो सो गया, मतलब 10-20 क्वेश्चन क्यों मैं फिर सो गया। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन उतनी नहीं रही होगी अच्छी, बट ऐसा थोड़ा होता है, मतलब आपका हो भी गया, ठीक है, देन चल रहा है, तो आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो। फिर एक ये क्वेश्चन क्या है, यू स्टडीड केमिस्ट्री, हाउ डू यू टीच फिजिक्स सो वेल? आई कैन टीच एनी सब्जेक्ट। मींस सिंस देखो जेई के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक कि आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट ओनली। मींस लाइक माय फिजिक्स वाज वेरी गुड, माय केमिस्ट्री वाज वेरी गुड, माय मैथ्स वाज आल्सो गुड, तभी इतना अच्छा रैंक आया। एंड इट इज ओनली पॉसिबल इफ योर ऑल थ्री सब्जेक्ट्स आर इक्वली गुड। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको एनालाइज करना है, एक बार थोड़ा सा देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम टाइम दो, जो वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, और सबको इक्वली स्ट्रांग रखो। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता था, मतलब ठीक है, उसने 2 बार जेई क्लियर किया, बट जेई में एक्चुअली उसको सीट नहीं मिला। यू नो व्हाई? बिकॉज उसका कभी भी सब्जेक्ट कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ केमिस्ट्री का। 2 टाइम उसने एग्जाम दिया, और ऐसा था ना कि उसके स्कोर्स बहुत डिसेंट थे। मतलब ऐसा था कि उसके लाइक 50% स्कोर थे विदाउट कंसिडरिंग केमिस्ट्री, ऐसा स्कोर कर देता वो। तो जो अगर केमिस्ट्री में भी कर लेता तो ही कुड हैव गॉट इजीली अंडर 1000 रैंक। बट उसका क्या था कि वो केमिस्ट्री को हेट करता था, उसने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। केमिस्ट्री में उसके 5 नंबर 10 नंबर आते थे आउट ऑफ फुल मार्क्स, तो उसका सब्जेक्ट कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ एडवांस में, तो उसको आईआईटी में सीट नहीं मिली। नाउ इज इन एनआईटी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 11 स्टार्ट किया है, किस मंथ तक खत्म करे आइडली? देखो आइडली ऐसा कुछ नहीं है, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट 11th एंड 12th आइडली 3 to 4 months बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम। यू नो अभी क्या है ना, अभी बहुत खराब सिस्टम हो गया है टू बी ऑनेस्ट। 4 बार 5 बार जेई मेन होता है, इससे क्या होता है, बच्चे बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। अपने टाइम पे क्या था, मतलब अच्छा भी है, देयर आर पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स। मतलब कौन मुझे ये लगता है इसका कि कई बार एग्जाम देना होता है, बच्चे मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते। बार बार जब आप एग्जाम देते हो ना, तो आप एग्जाम के माइंडसेट में ही रह जाते हो और प्रिपरेशन पे फोकस नहीं होता, आप एग्जाम पे ही सोचते रह जाते हो। अब तुम जेई एग्जाम दोगे, तुम्हारा 1 हफ्ता पहले से तुम सोच रहे हो अब तो मेरा एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद 1 हफ्ते बाद भी तुम गम में डूबे हुए हो, तो तुम्हारा तो यार 15 दिन बर्बाद हो गया ऐसे में। समझ रहे हो? अब इसका प्रो क्या है कि तुमको मल्टीपल चांसेस मिलता है। एक अटेम्प्ट किसी का हो सकता है यार, डे टू डे डिपेंड करता है, तो खराब हो गया कोई बात नहीं, दूसरे चांस में इंप्रूव कर लेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, इनका दिसंबर अटेम्प्ट बहुत खराब था, पर अप्रैल तक आते आते उन्होंने एकदम मचा दिया, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये भी है, सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों, हर चीज का प्रो एंड कॉन है। तो मेरे हिसाब से आपको ना एक ये डिसाइड करना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं कि मुझे दिसंबर में ही देना है। तुम सोचो अपने हिसाब से कि तुमको कब देना है। आइडली यू थिंक कि तुम्हें मार्च अटेम्प्ट देना है या अप्रैल अटेम्प्ट देना है, तुम डिसाइड करो अपना एक कि इस महीने में मुझे देना है। उस महीने के 2-3 महीने पहले तक तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर 2-3 महीने पूरा तुम अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है? What is my future goal after IIT? So I want to pursue PhD in chemistry, most probably from some good university. Okay, and then I want to do postdocs, and I want to join as a faculty in IITs or ISERs or any good institute in India. Since I want to be a professor and continue my research. That's it. And if the next question is, how do you revision for maths? Just like solving question. Yeah, so maths में क्या था ना कि सॉल्विंग क्वेश्चन तो है ही, कभी कभी कुछ कुछ चीजें थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड भी हो जाता है, टैंजेंट नॉर्मल ये सब, तो थोड़ा फॉर्मूला और क्वेश्चन का मिक्स करके मैं रिवीजन करता था। ठीक है, जेई के प्रीवियस ईयर बना लो तो बेस्ट रिवीजन है। आईआईटी जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर आर द बेस्ट रिवीजन प्रॉब्लम्स, उसका तो काफी हर चीज का रिवीजन हो जाता है। हाउ यू मेंटेन स्कूल एंड जेई टुगेदर? वेल, आई वाज नॉट इन स्कूल रियली। ओके,
So mine was only coaching, and coaching was the school for me. It's not really school. So okay. But I did prepared for board last 1 month or 2 months on my own. So that's not a big deal. Board is very easy. You just have to do NCRT properly. You know, JEE is the superset of board. The board is actually subset, right? So if you are good, if you have a good preparation for JEE, good background for JEE, you can definitely do good in JEE. Provided that you have a habit of doing subjective, as I said earlier, you should have a habit of doing things subjective, right? Objective में रहोगे तो you will miss out board as well. जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ. Any suggestion? Good question. It was very common problem with me. So what I used to do, the things which I was pretty sure ये तो मैं कभी नहीं भूलने वाला, like F is equal to ma. लाइफ में कोई भूल सकता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू ma. कोई नहीं भूलेगा. मतलब अगर भूलेगा तो समझ जाओ, मतलब ठीक है, फिर वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है. ये कोई नहीं भूल सकता. तो ऐसे जो बहुत ही बेयर मिनिमम चीजें हैं जो तुम भूल नहीं सकते हो, उनको तो एकदम टेंशन फ्री बिंदास रहने का. अब जैसे जो चीजें हैं जो तुम भूल सकते हो, है ना, उसको क्या करना है, एक चार्ट बना लो, उसका फॉर्मूला शीट लिख लिया. मैंने एक डायरी भी बनाई थी, उसमें लिख के रखता था, और वो डायरी पढ़ता था, बीच बीच में रिवीजन करता था. या केमिस्ट्री में खास करके रिएक्शन वगैरह भूल जाता था, तो बड़ा बड़ा चार्ट बना के अपने टेबल, अपने रूम में चारों तरफ चिपका दिया. मेरे रूम में दीवार गंदी हो गई थी, मतलब उसको पेंट कराना पड़ा वापस में लिटरली. मेरा तो एक फ्रेंड था, वो तो दीवार पे ही लिख देता था. वो तो पूरा अपने घर में दीवार पे लिख दिया. मैं उसके रूम में गया, देखा दीवार पे लिख रखा है उसने पूरा पेंसिल से, पूरा दीवार पे लिख रखा है. मैं तो दीवार पे नहीं लिखता था, मैंने पेपर पे लिख लिख के उसको चिपका रखा था, ताकि मतलब उठूं रैंडमली रूम में इधर उधर तो नजर जाता ही है पढ़ते पढ़ते. अब मैं मान लो नजर चला गया, इधर देख रहा हूँ यार 10 रिएक्शन लिखे हुए हैं, इधर देखा, देख रहा हूँ यहाँ पे मैथ्स के 10 फॉर्मूले चिपके हुए हैं. तो वो चीजें बार बार देखने से ना, इफ यू सी समथिंग एवरी डे, it automatically get stored in your brain, right? ठीक है. So that will be all from my side today, ठीक है ना. So I hope you guys do very good in your life. All the best to you. And I will conclude myself by saying this key. See, JEE preparation is not a joke. Well, it's not that difficult as if people say. It's quite easy. Trust me, I have done it. It's not very difficult. All it needs is little bit of sacrifice, which you should be able to give. You know, you cannot have happiness at same time. It's like आप दोनों हाथ से खुश नहीं हो सकते, right? That's the same thing I say. So you have to sacrifice something, and you have to do JEE preparation, and it's a continuous effort. It's not like you just sleep for all the time and just before exam you start and you will do it. And it's a very long phase. It's a 2-year phase. It's a 2-year journey down the line. And it's very important not just to be physically well, but to be mentally well as well. You have to be very smart, means you have to be very careful. You have to plan everything out. So at least 1 month advance planning करके रखना होगा. You know, people, students generally cry a lot of time कि हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, strategy बता दो, ये कर दो, वो कर दो. See, no one will spoon feed you. दिस इज, मतलब अभी ये ट्रेंड है. थिंक अबाउट पीपल जो आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जेई करते थे, वो कैसे करते थे. उनके पास तो बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं था, उनके पास तो इंटरनेट नहीं था, तब इतनी सारी कोचिंग्स नहीं थी, तब मार्केट में इतनी सारी बुक नहीं था, ठीक है. तब कैसे इतना प्रिपेयर किया उन लोगों ने. तो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू थिंक कि इफ दे कैन डू देन यू कैन आल्सो डू, राइट. तब तो और कॉम्पिटिटिव था. अभी आईआईटी में 10,000 बच्चों को एडमिशन मिलता है अराउंड, ठीक है, एक बार में. उस टाइम पे सिर्फ 4 या 5 ही आईआईटी थी, और टोटल मिला के मुझे लगता होगा 1000 बच्चे सेलेक्ट होते होंगे, 1000-2000, इससे ज्यादा तो नहीं. समझ रहे हो, कंपटीशन उतना ही था. सिलेक्शन रेशियो अब थोड़ा इंप्रूव हुआ है बेसिकली. तो चीजें थी, लोग कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो. यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, ठीक है. एंड यू शुड डू समथिंग in right direction, and you should be happy with. See, it's not like you can climb Mount Everest, right? Can you climb Mount Everest in one step? No, you cannot climb a hill in one go. ऐसा तो नहीं कि अपन एक हेलीकॉप्टर लेके आएंगे और सीधा हिल टॉप पे लैंड कर जाएंगे, ये नहीं होने वाला.
So you have to climb, and that climb will be done in steps. So before JEE, you have to set your steps. कि ठीक है, मेरा स्टेप ये होगा कि मैं जो कोचिंग का जो मेरा 1 महीने बाद टेस्ट हो रहा है इसमें टॉप करूंगा. ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे. मेरा स्टेप ये होगा कि मैं काइनेमेटिक्स चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना लूंगा. मेरा गोल ये होगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा. ऐसे ऐसे करके यू हैव टू सेट योर स्टेप्स एंड देन यू हैव टू गो अहेड. ठीक है. And then you have to have satisfaction with your goal, and then you have to be sacrificing the nature as well. You have to trade off. Basically, there will be some of your friends who will be enjoying their life. A lot of my friends enjoying their life in teenage, and that is something a lot of people do. But you have to sacrifice that. You have to sacrifice a lot of things to have that long-term happiness. And one message: let's say if you can't get into JEE, it's not the end of your life. You are merely 18-year-old. You can do your graduation from any other college, and you can do well. A lot of people who are doing good, are they all IITian? Tell me. No, they are not. IITian, being an IITian is not a guarantee of being successful. It's a societal mindset. This is a very false image of being IIT. Being an IIT, getting a crore package, well, something which I will speak some maybe if I get chance later on. But it's not like everyone who joins IIT ends up having a crore package. These are all lies and false things which people hear about. Well, IIT is definitely the best place for engineering in India, but it doesn't guarantee you success. Even in IIT, you have to put efforts. Then only you will excel. It's a simple funda of life. The moment you stop putting effort, you will go down. That's a very simple funda. It doesn't matter where you are and who you are. It's applicable to each and every one. Each and every one. Okay. So that's it from my side. All the best, guys. Do well. Okay. Don't worry about package and all. These are all rubbish things. Money is nothing. Okay. Stay motivated. Think about your life and make a meaning out of your life. Okay. That's it. Chalo. Bye, guys. All the best.